ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਚ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੋਲ, ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਾਕ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਾਕ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਧੁਨੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬਹਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਮ, ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਸਭ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜੈਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਬਣੀ, ਗੈਸ ਬਣੀ, ਮੁੱਦਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਬਣੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਠੋਸ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਬਣਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਐਸਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੋਕਾਰ, ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਔਰ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਭਇਆ, ਪਵਣੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਾਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਕਰ ਟਾਸਿਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪਰਲੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜਨਮ ਤਿਥ ਸਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਮ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਗਰਭਾਸ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਗਰਭ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਣੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਣੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚਾਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
जद अपने जन्म बारे कुछ नहीं पता तो संसार बारे की खाक पता होवेगा। सब अंदाजे गलत ने। संसार नूं बनिया 4000 साल होए, बचकानियां गल्लां ने, अपने बारे ही कुछ नहीं पता। तो संसार बारे सही जानकारी की दिती जा सकती। ये जो इस तरह की इस वक्त साड़ी होंद है, ये कदों आलमे वजूद दे च आई। महाराज कहते जद तू गर्भ दे च प्रवेश किया, ये तेरी यात्रा आरंभ हो गई इस जीवन दे च। उंज तू बहुत जी चुके हैं। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलमे। कई दफा जमे हैं, कई दफा मरे हैं, जमदा रहे हैं, मरदा रहे। ये तो लंबी यात्रा है, लंबी श्रृंखला है। पर यह जन्म कदों होया सी, ईश्वर जाने। मैं फिर अर्ज करा, चरम सीमा ते पहुंची है साइंस। निश्चित समा दिन दसना औखा है। मौत ते होनी है, लाजमी होनी है। अनगहली अज्ञानी तो अज्ञानी मनुख भी समझदा है, लेकिन कदों होनी है कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। परमात्मा की तरफों निश्चित है मौत। इस निश्चिता का सानू पता नहीं, इस वास्ते मनुख मौत तो निश्चिंत हो जाता है। शायद नहीं, शायद नहीं। ईश्वर की तरफों तो निश्चित है, पर चूंकि है कदों है कुछ पता नहीं, मनुख को पता नहीं, इस करके निश्चिंत है। तो मैं इतनी गल इस वास्ते अर्ज की है, संसार कदों बनिया। पहले सवाल यह है, तेरी जीवन यात्रा कदों आरंभ हुई? अपने आप का तो पता नहीं, इन्ने वड्डे ब्रह्मंड का ये कदों तो बनिया। महाराज कहते थित वार ना जोगी जाने। जुड़े होया जोगी जो जुड़ गया, जो परमात्मा नाल जुड़ गया, वह भी नहीं दस सकता। थित वार ना जोगी जाने, रुत मा ना कोई। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। वो एक है, प्रकाश है, उस तो एक ध्वनि हुई। और वो ध्वनि की हुई, मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, भारत दे जितने संत होए ने, अवतार होए ने, वो एक आवाज कहते ने, वो ध्वनि ओंकार सी। वो धुन ओंकार सी। और उसे धुन दे ये सारा बहाव चल रहा है, जन्म जीवन मरण, उसे धुन दे। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। ये लखां जिंदगियां दे दरिया, क्योंकि दरिया बह रहा है, सब कुछ बह रहा है इस ओंकार दे विच। की बह रहा है? जन्म हो रहा है, जीवन हो रहा है, फिर मरण हो रहा है, मरण फिर जन्म दे बदलता है। ये बहाव चल रहा है, एक बहाव चल रहा है इसे ही धुन दे, इसे ही शब्द दे। यही जैनियां दी पकड़ दे च आया है, यही सनातनियां दी पकड़ दे च आया है, यही महात्मा बुद्ध दी पकड़ दे च आया, और यही गुरु नानक दी पकड़ दे च आया। किसी हद तक अमीर खुसरो भी यही कहता है। सूफी संत भारत दे संतां दे बहुत नेड़े ने, सूफी फकीर। यही कारण है कि सूफियां नूं, सही मैने दे सूफियां नूं इस्लाम ने कबूल नहीं किया। मंसूर नूं सूली ते चाड़ दिता गया। शमस तबरेज दी पुठी खल आई गई मुल्तान दे च। सरमद नूं कतल किया गया दिल्ली दे लाल किले दे च। और साईं बुल्ला शाह जो इधर लाहौर दे नेड़े रहन वाला, यह भी सूफी सन सी। इन्हें कह दिता, जे जाहर करा इसरार ताई, सारे भुल जावन तकरार ताई। फिर मारन बुले यार थाई, ते गुप्ती बात सुखींदी है। कहंदा मैं जानिया जो मैं कहना नहीं। क्यों? कहंदा मैं कहा तो मेरी हालत मंसूर जैसी, जे मैं कह देता तो मेरी हालत शमस तबरेज जैसी, जे मैं कह देता तो जो सरमद नाल होया मेरे नाल होएगा। दुनिया का हाजमा बड़ा कमजोर है,
बहुत कमजोर है। हर एक ने अपना दायरा बना रखा है, उस दायरे च जी रहे, तेली दे बैल की तरह, कोलू दे बैल की तरह। कहता एक वाजिब शब्द शरत अदब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है। जे जाहिर करा इसरार ताई, जे मैं सारा ये राज खोल दिया कि कोई काफिर नहीं, कोई ईमानदार नहीं, सब खुदा ही खुदा है। जे मैं ये खोल दिया, जे जाहिर करा इसरार ताई, सारे भुल जावन तकरार ताई, फिर मारन बुले यार थाई। इथे गुप्ती बात सुखेंदी है, इथे गुप्त रहना ही चंगा है, फिर बुले यार दी खैर कोई नहीं, फिर ते मारनगे। जे मंसूर नूं नहीं छोड़िया गया, शमस तबरेज नूं नहीं छोड़िया गया, सरमद नूं नहीं छोड़िया गया, होर सैकड़े सूफी संत मार दिते गए, तो मैनू किसने छड़ना है। शमस तबरेज कहंदा सी, हर गए मन तारे गश्ता, हाजते जुन्नारे नेस्त, काफरे इश्कम मुसलमानी मारा दरकारे नेस्त। शमस तबरेज कहंदा ये जो श्वास चल रहे ने लड़ीवार, यही मैं जनेऊ पहने होया, होर किहड़े जनेऊ की लोड़ है। हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुन्नारे नेस, काफरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकार नेस्त। और काफरा क्योंकि इश्क ने सब कुछ जो मेरे विच फिजूल सी कट के रख देता है, बस इश्क ही मेरी सुन्नत है, चल रहे श्वास ही मेरा जनेऊ ने, मैनू जनेऊ की लोड़ नहीं, मैनू सुन्नत की लोड़ नहीं। शमस तबरेज हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुनारे नेस्त, काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकारे नेस्त। तो कौन जीण देगा। मुल्तान दे नवाब ने इसकी पुठी खल लाई, इनू तड़वा के मारिया। यही हालत सरमद दी हुई, यही हालत मंसूर दी हुई। मंसूर नूं ते बड़ी बेरहमी नाल मारिया गया। पता उसने की आख्या, अनल हक। ये उसने काहरा दे च आख्या, मिस्र दे च आख्या, किधरे हिंदुस्तान दे च कहंदा ते पूजिया जाना सी। ये भी मैं अर्ज कर दिया, अनल हक, मैं हक हो गया, मैं सच बन गया। हुण कबीर भी तो यही कहते ने, कबीर जाको खोजते, पाया सोई ठौर, सोई फिर के तू भया, जाको कहता होर। मैं जिसनों होर कहंदा सी राम कोई होर है, परमात्मा कोई होर है, ये ते कबीर तो ही निकलिया, ते गल ही कुछ होर। तो कबीर दा ये बोल बर्दाश्त कर लिया गया, क्योंकि भारत दे च आख्या इसने। इत्थे इस तरह की हवा सी, अहम ब्रह्मस्मि, ये हवा सी। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। मैं हरि दी तलाश कदों दी छोड़ देती है, हरि मेरी तलाश कर रहे हैं। मैं हरि दे पिछे जाना कदों दा छोड़ देता है, हरि मेरे पिछे चल रहे हैं। ये हिंदुस्तान दे च आख्या जा सकता सी, मुश्किल सी। होर दुनिया च इस तरह कहा जाता, खुदा मेरे पिछे चल रहा है, खुदा मेरी तलाश है। सूफिया ने जरूर कहा, सूफी कहते ने, लगता है अज खुदा ने सानू बहुत याद किया है, क्योंकि अज खुदा दी याद आ रही है। वो इंज कहते हैं, वो इस तरह कहते हैं। यादां बड़ी दूर तक पहुंचदियां ने। यह गल वखरी है, किधरे किधरे मजबूर होके ऐसा भी आख्या गया, अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। हे रब तेरी बस्ती किन्नी क दूर है, मेरी याद भी नहीं पहुंचती, मैं किथे पहुंचा। मेरे कदम किथे पहुंचन, मेरी याद भी नहीं पहुंचती, मेरी सिमरती भी नहीं पहुंचती। ते जिथे तक मेरी याद नहीं पहुंच सकती, उत्थे तक मेरे कदम किस तरह पहुंचन।
अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। इसे नू अमीर खुसरो कहंदा है। छुप गए वो साज हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। एक आवाज ते गूंज रही है, सुन रहे हैं। एक झलक वेखी सी बिजली दी तरह, ओझल हो गई है, हुण नहीं है। इस फकीर ने कबूल कर लिया है, नहीं है हुण मेरे कोल, वो झलक नहीं है। मिली सी किसी वक्त, मैं देखी सी किसी वक्त। मैनू अपनी जिंदगी च इस तरह के हजारां मनुख मिले ने जिन्हां ने झलक वेखी गवा बैठे, नहीं रही। बाकी जिंदगी उस झलक दे तड़पदियां लंघी, बाकी जीवन उस झलक दी याद दे बतीत होया, तड़पदियां बतीत होया। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन दा चेला सी, उन्हां दी सेवा करदा सी। ते हजरत निजामुद्दीन उस जमाने च मन्ने परमन्ने चोटी दे फकीर सन। दिल्ली दे इन्हां दे नाम ते एक इलाके दा नाम भी है हजरत निजामुद्दीन। एक रेलवे स्टेशन का नाम भी हजरत निजामुद्दीन है। एक बहुत बड़ा एरिया कलोनी है दिल्ली दे, उसका नाम है हजरत निजामुद्दीन। एक बहुत मन्ना परमनिया सूफी संत ते इसदा चेला अमीर खुसरो, एक कहंदा छुप गए वो साज हस्ती छेड़ कर, अपनी हस्ती दा साज मेरी दुनिया छेड़ गए, छिड़िया सी, पर अब तो बस आवाज ही आवाज है। जिस साज तो ये आवाज निकली सी, वो साज ते ओझल हो गया, वो झलक ते ओझल हो गई। वो मेरे सामने साज ते कोई नहीं, वो प्रकाश ते नहीं है, आवाज है। आवाज दे आसरे ते जी रहे हैं, आवाज है मेरे को। आवाज ब्रह्मंड दे च व्यापक है। ये महात्मा बुद्ध दी पकड़ दे चाई ओंकार, ये जैन धर्म दे बानी स्वामी महावीर दी पकड़ दे चाई ओंकार, ये भारत दे उपनिषदां दे ऋषि और अवतारी पुरुष कृष्ण दे राम, विश्वामित्र ते विशिष्ट, संदीपनी ते दुर्वासा, श्री कृष्ण दे दो गुरु सन, राम दे दो गुरु सन। राम दे दो गुरु सन विशिष्ट ते विश्वामित्र, श्री कृष्ण दे दो गुरु सन संदीपनी ते दुर्वासा। ये जो मुखी बंदे ने धार्मिक दुनिया दे, जिन्हां दे उत्ते हिंदुस्तान का धार्मिक इतिहास खड़ा है, कहते ना मूल धुनी ओंकार है। गुरमत का जमाना आया, गुरु नानक का जमाना आया, आप दी कंठ तो भी निकलिया मूल मंत्र, मूल बोल, बुनियादी बोल ओंकार। एक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सैकड़े थावां ते आंदा है। किधरे बाणी शुरू होंदी है, राग शुरू होंदा है, नवी गल शुरू होंदी है, भगतां दी बाणी शुरू होंदी है, मूल मंत्र मौजूद, और मूल मंत्र दा पहला अखर एक ओंकार। इनू बार बार क्यों दोहराया? इनू सारे गुरु ग्रंथ साहब विच बार बार क्यों लिखे है? यही तो एक ध्वनि है जो व्यापक है, ब्रह्मंड दे च व्यापक है, और इसे च सारा बहाव चल रहा है, जन्म जीवन मरण। इस्लाम दे सूफी संतां दी पकड़ दे जरूर आया, वो साफ कह रहे हैं अब तो बस आवाज ही आवाज है, सब कुछ उसे आवाज दे च हो रहा है। हुण वो आवाज कहंदे ने, संस्कृत दे च आवाज नूं कहंदे ने मंत्र, बोल, आवाज। ब्रिज भाषा शब्द कह देंदे ने, पंजाबी च असीं वाक कह देंदे हैं, इसनूं असीं इंज कह सकते हैं मूल वाक, मूल आवाज, मूल मंत्र, इंज कह सकते हैं। पुरानी भाषा देश की संस्कृत सी, और यही धर्म की भाषा बन गई, क्योंकि धर्म नूं वर्णन करने वास्ते जैसे शब्द उस कोल ने
ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। तो एक इंटरप्रेट कर रहा सी, सुनन वाले सारे सजे हुए गोरे सिंह ये सन, तो मैं बोल रहा सी। चतुष्टा अंतःकरण दी जद गल आई कि मन दे चार भाग मन बुद्ध चित अहंग, चतुष्टा अंतःकरण, उसने जिस ढंग नाल इंटरप्रेट किया, मैं कहा नहीं, मेरा मन सहमत नहीं, तू जो कुछ कहे है। सरदार अशोका सिंह सनू मैनू कहने लगे, ज्ञानी जी इंग्लिश शब्द ही कोई नहीं चतुष्टा अंतःकरण वास्ते, तो की बयान करिए, कॉन्शियस माइंड ते अनकॉन्शियस कहना पड़ेगा, और की कहिए, अचेत मन ते सुचेत मन, और की कहिए। विज्ञान नू वर्णन करने वास्ते इंग्लिश कोल पूरे शब्द हैं, अखर हैं। धर्म नो बयान करने वास्ते नहीं ने। धर्म नो बयान करने वास्ते संस्कृत कोल पूरी भाषा है, पूरे अक्षर ने, और जेड़े भी अक्षर बनाए गए धर्म नो प्रगट करने वास्ते। लेकिन विज्ञान नो प्रगट कर सकन, यकीन जानो उन्हां कोल भी शब्द कोई नहीं, उन्होंने भी इधरों उधार लेने पैंदे ने, ये भी महर्ज करते हैं। एक विज्ञान नू पूर्ण प्रगट कर सके अल्फाज नहीं ने, एक धर्म नू पूर्ण तौर ते प्रगट कर सकन शब्द नहीं ने, अल्फाज नहीं ने। इस हिसाब नाल दोवें कह दईए भाषावां लंघड़ियां ने, एक विज्ञान दी दुनिया च नहीं चल सकती, एक धर्म दी दुनिया च नहीं चल सकती। इस वास्ते मैं अर्ज करा, इंग्लिश दे धर्म दी कतई पूरी व्याख्या नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती, भावें कई कहंदे पए ने। इसनों इस्लाम ने अगर नहीं मनिया तो चंगा ही कीता है, बई नमाज ते अरबी च ही पढ़ांगे, कुरान दी तलावत ते अरबी च ही होगी, होर किसी भाषा च नहीं। मूल खो जाएगा, बुनियाद खो जाएगी, जिवें मोहम्मद साहब दी पकड़ दे चाई वो खो जाएगी। नहीं, उते अरबी पढ़नी पैगी मुसलमान नूं। कितने इंग्लिश दे टीके पढ़ लो, यकीन जानो सरूर नहीं मिलेगा जितने चिर तक यही बोल तुसी अपनी जबान ते ना दोहराओ जो गुरु नानक दी पकड़ दे चाहे, जो गुरु नानक दे कंठ तो निकले, जो गुरु नानक दी रसना तो निकले। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, जद भी कोई इस बहाव नू देख लेंदा है उसका दायरा बड़ा वसी हो जाता है। ये शब्द कित्थों शुरू होंदा है, कित्थे खत्म होंदा है, कुछ नहीं पता। धुन व्यापक है, प्रकाश व्यापक है, ध्वनि व्यापक है, प्रकाश व्यापक है, शब्द व्यापक है। कीता पसाओ एको कवाओ, शब्द एक, दो तीन चार नहीं, एक, एको कवाओ, एक ध्वनि। तिस्ते होए लख दरियाओ, उसे एक ध्वनि दे विच लखां जिंदगी दे दरिया चल पए। सूरजां दे दरिया, चंद्रमा दे दरिया, तारे ग्रह ने छत्र धरती, पवन पानी मनुख जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति, पता नहीं कितने दरिया चल पे उसे एक धुन दे, उसे एक शब्द दे। और गजब दी गल, हिंदुस्तान दे प्राचीन सारे संत सहमत ने। जद किसी दी ये धुन प्रगट दे च आ जाती है तो कह देंदा है परमात्मा नू मैं हुण सुन रहा, और मैनू ऐसा बोध हो गया कि परमात्मा हर वक्त बोल रहा है। ठाकर हमरा सद बोलन था, मेरा रब हर वक्त बोल रहा, कदी चुप नहीं करता, मौनी नहीं है, वो तो बोल रहा है, हर वक्त बोल रहा है। उदी धुन हर वक्त गूंज रही है, नहीं सुनाई दे रही तो असी बह रहे हैं, और की है, इन्ना कहना पड़ेगा। कारण चेतना मन ये भी बोली जा रही है, चुप करे ते सुने, नहीं चुप करता। तो एक ते परमात्मा बोल रहे, एक मनुख दा मन बोल रहा, बस ये मन ही दीवार है।
ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਛੱਡ ਤੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। कम से कम 23 घंटे तू सोचना है सोच, विचारना है विचार, चेते करना है चेते कर। जद 1 घंटा बंदगी वास्ते बैठ, मन नु परे कर। ये नहीं मिलन देगा, ये दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि मन दे जिहड़ी सोचनी चलेगी, मन दे जिहड़े विचार चलणगे, मन दे जो चिंतन यादां चलणगियां, ये ते दीवार बन के खड़ी हो जाएगी, तेनों मिलन नहीं देगी। तो खैर उस ओंकार दे नाल गुरु नानक ने एका जोड़िया, क्योंकि जिन्हां दी पकड़ दे च आया वो ते सच्चे ऋषि संत महापुरुष सन। ते बाद विच हजारां साल दा ये जिहड़ा अंतराल गैप खड़ा हो गया, अज ते किथे ऋषि मुनि, वो अवतार। तो विश्वास अंध विश्वास बन गया। अंध विश्वास किसनों कहते ने? जिसनों मैं जानिया नहीं, मैं समझिया नहीं, फिर भी मैं कह रहा, बयान कर रहा। तो ये मेरा बयान करना अंधविश्वास तो ज्यादा और कुछ भी नहीं। शेख सादी साहब ते कहा करते सन, मजहब की दुनिया च, धर्म की दुनिया च सब अंधे लोग रास्ता दिखा रहे हैं। अंधे लोग, सब सुते हुए बंदे सुत्या होया जगाण की कोशिश पे करते हैं। हद हो गई, तू आप ही सुता पे तो सुते हुए किस तरह जगाएगा? खुफ्ता रा खुफ्ता कि कुनद बेदार। ये सुता होया सुते हुए किस तरह जगाएगा? ये बुझी हुई शमा, बुझी हुई शमा नो किस तरह जलाएगी? तो शेख सादी साहब कहा करते सन, बुझे हुए दीपक दीपकां नूं जलाण दी कोशिश पे करते हैं। ये सुते हुए मनुख मजहब की दुनिया दे, धर्म की दुनिया दे, ये सुते हुए मनुख सुतियां नूं जगाण दी कोशिश पे करते हैं। ये अंधे मनुख रस्ता दिखाण दी कोशिश पे करते हैं। कहते कम से कम ये इतना कम ना करन तो शायद अंधे कुछ टटोल टटोल के कुछ उन्हां दी अखां भी खुलन, अपने अखां दा इलाज भी करान, भी नहीं दिखाई देंदा, कुछ कोशिश भी करन जागण दी, पर ये सुते हुए जागण ही नहीं देंदे। क्योंकि सुते हुए दावा पे करदे ने असीं जागे होए हैं, तुहानूं जगा रहे हैं, पर इन्हां कोल पुछिए सुनाई दे रहा है परमात्मा? अगर नहीं सुनाई दे रहा तो मन सुता पे, और की है? जागत सोया जन्म गवाया। महाराज कहते माड़ा जिहा तू शरीर दे तल ते जागया है, मन दे तल ते सुता होया। जागत सोया जन्म गवाया, सारी जिंदगी सुतियां ही लंघ गई, सुतियां ही जीवन बतीत हो गया। वो जिहड़ी धुन गूंज रही है तो उसनूं बाहरों वाहिगुरू वाहिगुरू दी धुन, इहदी की लोड़ पैगी? बाहरों अपने सुते हुए मन नूं जगाउण वास्ते। जिस दिन मन जागदा फिर उस धुनी नूं सुन लैंदा, फिर अजप्पा जाप चलदा, फिर रसना नूं जपण दी लोड़ नहीं, फिर जबान नूं कुछ कहण दी लोड़ नहीं। ये सच्चाई जिन्हां दी पकड़ दे चाई, खास करके अरब दुनिया च, ते जद उन्होंने बयान कर दी, कतल होए, मारे गए। चाहे मंसूर सी, मैं फिर दोहरावां, चाहे शमस तबरेज सी, चाहे सरमद सी, ते चाहे हजारां होर सूफी संत सन। इन्हां सारियां तो शिक्षा ले लई बुल्ले शाह ने। कहंदा नहीं, मैं कहना ही नहीं कुछ, उतना कहना है जिन्ना लोकी हजम कर सकन। एक वाजिब शर्त अदब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है। मैं नहीं कहता किसी नूं काफिर, कोई काफिर नहीं है। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता किसी नूं मूर्ख। गुरु नानक देव जी महाराज कहते न को मूर्ख न को सियाणा, वरते सब कुछ तेरा भाणा। असी नहीं कहते किसी नूं ये बहुत सियाणा है, ये बहुत मूर्ख है, ये कहना ही छोड़ दिता है, ये दोरंगी बयान करनी छड़ देती है। बुल्ले नूं कहिए जितना तू जाने है कह दे, तो कहंदा जे जाहिर करां इसरार ताई, सारे भुल जावन तकरार ताई, फिर मारन बुल्ले यार थाई, थे गुप्ती बात सुखेंदी है।
फिर बुल्ले यार दी खैर कोई नहीं, मार खानी पेगी, फिर कोई सहारेगा नहीं। बुल्ला उन्ने चिर तक बर्दाश्त हो सकता है कि मैं वो बोला जो आम संसार दे नाल तालमेल बैठ जाए, तालमेल बैठ जाए। तो जे मैं वो बोलिया जिहड़ा तालमेल ना बैठिया तो फिर मेरी खैर कोई नहीं, तो मैं नहीं बोलना, मैं नहीं कहता। कुछ ऐसे सन जो बोल पे, ते जद बोल पे तो तत्ती तवी ते बैठना पएगा, चांदनी चौंक दे शहीद होना पएगा, सूली ते चढ़ना पएगा, बंद बंद कटाने पैणगे, बोल पे। और मैं अर्ज करा जिन्ने भी संत पूजे जा रहे ने इन्हां दे चों 90% ते संत है नहीं, बिल्कुल नहीं ने। ते जिहड़े 10% हैगे ने ਉਹ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਗਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਜੁੜੇਗਾ। कबीर कहते ने ऐ मौलवीओ, ऐ पंडितो, जद मैं थानू छड्डिया तुसी मैनू छड्डो, मेरा खेड़ा छड्डो, मैं थानू छड्ड दिता है। हमरा झगड़ा रहा ना कहू, पंडित मूला छाड़े दो, मेरा तालमेल थोड़े नाल नहीं बैठता। पंडित मूला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछू ना लिया, मैं तो छोड़ दिता है, मेरा इन्हां नाल तालमेल नहीं बैठता। इतनी उच्ची गल कह दी, इतनी उच्ची गल कह दी, ना पंडितां नूं बर्दाश्त होई ना मौलवियां नूं। आप सुन के हैरान होवोगे, जद महात्मा बुद्ध ने सच्चाई नूं वर्णन कीता, कोई 4 वर्ण नहीं ने, कोई जन्म तो शूद्र नहीं, कोई जन्म तो ब्राह्मण नहीं, कोई खत्री नहीं, कोई वैश्य नहीं, एक बहाव है ब्रह्मंड दे। तो महात्मा बुद्ध भारत दे पता है की होया, बौद्ध भिक्षुआं नाल 13 लाख बौद्ध भिक्षु जिंदा जलाए गए उस जमाने। कबूल नहीं गए। फिर कबीर ने आवाज लाई, कोई वर्ण नहीं 4, कोई जन्म तो ब्राह्मण नहीं, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। जिस तरह मेरा जन्म है उस तरह तेरा जन्म है। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। मेरा तन कोई चीरे लहू निकलदा है, ते तेरा तन चीरिए ते दूध निकलदा है। लहू निकलदा और की है, तू भी यही कुछ है। तू केड़ी गल दा ब्राह्मण, तू किस गल ते ब्राह्मण। मैं नहीं कहता तैनू, और मैं अपने आप नूं शूदर नहीं मनदा। बनी हुई परंपरा दे मुताबिक ते शूदर मनना चाहिए सी कबीर नूं, जुलाहा सी, कहंदा मैं नहीं मनदा। बनी हुई परंपरा दे मुताबिक ते ब्राह्मण कहना चाहिए सी कबीर नूं, कहंदा नहीं, कहंदा मैं तू ब्राह्मण नहीं है, मैं शूदर नहीं है। एक बहाव है। तो कबीर भी कबूल नहीं होए, बनारस छोड़नी पई। बहुत घट बंदियां नूं पता है, बनारस छोड़नी पई मजबूरन। बिरध हो गया सी, बुढ़ा हो गया सी, बनारस छोड़नी पै गई। ते जद बनारस तो जान लगे ना, तो कढ़िया ते हुण ब्राह्मणा ने, ते ब्राह्मण मजाक दे च कहंदे ने, सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मग हर उठदा आया। सारी जिंदगी तेरे है काशी दे च, बनारस दे च, हुण मरण दा वेला आया ते जा रहे मगहर। मगहर जिला गोरखपुर शहर तो कोई 15 मील दूरी ते एक निक्का जिहा कस्बा है। इस कस्बे च ब्राह्मण नहीं जाते, किसी कीमत ते भी नहीं जाते। कहंदे ने
ਇਹ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਹਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਦਾਸ 2 ਦਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਗੋਰਖਪੁਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਦੇਖ ਆਈਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਦੇਖ ਆਈਏ ਬਨਾਰਸ ਕਿਉਂ ਛੋੜੀ? ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਧਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ, ਇਧਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰ ਨਾਈ, ਓਏ ਲੈ ਜਾਰੇ ਓਏ ਲੈ ਗਾੜੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੋ ਨਾ ਪਾਈ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰ ਨਾਈ, ਓਏ ਲੈ ਜਾਰੇ ਓਏ ਲੈ ਗਾੜੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੋ ਨਾ ਪਾਈ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀਵਣਾ ਕਬੀਰ ਦਾ। ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਨਾਰਸ ਛੋੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਛੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਲੇਛ ਨਿਕਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਮਗਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਗਹਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਜਮਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਜੋ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਸਣ ਕਰਕੇ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਗਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਕਿਉਂ? ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣ ਲਓ, तो कबीर कहते सन होर जगह फिर ब्राह्मण पहुंच जाएगा, तो मैं हुण संघर्ष नहीं कर सकता। मैं चाहता जिहड़ी महक मेरे कोल है कोई लेना चाहे, बैठ के सत्संग करना चाहे तो उन्हों लाभ पहुंचा दें। हुण तर्क दे झगड़ियां दे मैं जी नहीं सकता। हुण मैं चाहना बाकी जीवन आराम नाल कटा, और जो कोई आनंद लेना चाहते ने वो मेरी महफिल दे बैठ के मैं उन्होंने दसांगा। तो कुछ परवाने कुछ पतंगे इस शमा दे आले दुआले उत्थे इकट्ठे हो गए सन। वही एक निक्का जिहा कस्बा बनिया। मैं जब पहली दफा देखण गया तो एक कबरनुमा मड़ी बनी हुई सी जिथे कबीर समाए सन, हालांकि उन्हां दी देही नहीं मिली सी, जैसे गुरु नानक दी नहीं मिली। हिंदू ते मुसलमाना ने तलवारां कढ़ लईआं सन। मुसलमाना ने कहा ये हाजी है, ये मक्के दी हज करके भी आया है, ये मुसलमान है, ये सुल्तानपुर दे नवाब दी मस्जिद दे भी चला गया सी नमाज पढ़न, असी ते कबर बनावांगे। हिंदू कहने लगे किस तरह हो सकता है, पिता दा नाम कल्याण दास है, माता दा नाम तृप्ता है, ये बेदी कुल दे जमे है, असी ते दाह संस्कार करांगे। जद तकरार लड़ाई तक पहुंची, कढ़ ले एक दूजे ने शस्त्र, तो
तो किसी सियाणे ने कहा जरा देखते लो चद्दर दे थल्ले। चद्दर दे थल्ले देखिया गुरु नानक दा शरीर नहीं सी, दो गुलाब दे फुल पए सन, कुछ भी नहीं सी, चद्दर सी। तकरार करने वाले नहीं समझ सके, झगड़न वाले ना समझ सके, तो पता है झगड़ा फिर भी होया। मुसलमान कहने लगे चद्दर ते है, असीस दी कब्र बनानी है। हिंदू कहने लगे नहीं चद्दर ते है, असीस नूं जलाना। ते अद्धा अद्धा नहीं वंडिया जा सकता सी, क्योंकि सारी जिंदगी इकट्ठा करता रहा जगत नूं, बाले ते मरदाने नूं, हिंदू ते मुस्लिम नूं इकट्ठा करता रहा। पर मूर्खां दे हथ किधरे गुरु नानक दी चद्दर आ गई, वंड के रख दिती। गुरु नानक नूं ते ना वंड सके, चद्दर वंडी गई। पता कित्थे वंडी गई है चद्दर? करतारपुर दे डेरे बाबे नानक तो सामने करतारपुर दिखाई देंदा है, विचकार वगदी हुई रावी है, और सामने करतारपुर, उरार डेरा बाबा नानक, पार करतारपुर। जो डेरा बाबा नानक दे खड़ा है वह करतारपुर नहीं जा सकता, और जो करतारपुर खड़ा है वो डेरा बाबे नानक दे नहीं आ सकता। रहराज साहब का शाम नूं पाठ आउंदा है, कई दफा उधर की आवाज इधर आती, इधर की आवाज उधर जाती है, पर उधर का मनुख इधर नहीं आ सकता, इधर का मनुख उधर नहीं आ सकता। जिस थां ते गुरु नानक दी चद्दर दे दो टुकड़े होए, उत्थों ही मुल्क दे दो टुकड़े हो गए, उत्थों ही होए। मुसलमाना ने दब के कब्र बनाई रावी दे कंडे थे, हिंदुओं ने जला के मड़ी बनाई। रब नूं ये गल कबूल नहीं सी। रात नूं रावी दा पानी चढ़िया, तूफान आया, हड़ आया, किधरे मींह बड़ा जोर दा बह गया, मड़ी भी बह गई ते कब्र भी बह गई। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहते ने, बाबा मड़ी ना गोर, गुरु अंगद के हिये माए, पुन सत संगत और, निस दिन बसबो मैं करो। मड़ियां च लभदे पयो गुरु नानक नूं। गुरु अंगद देव जी दे हिरदे च लको, संगत दे च लभो, शबद दे च लभो, किथे लभदे पयो, किथे पै जांदे हो? जो इतने निकटवर्ती सन, कोल रहन वाले, न हिंदू समझे न मुस्लिम समझे, कौन समझे? दुनिया दे अवतारी पुरुषां दे बोलां नूं कौन समझे? विचारियां दी गल हवा दे चुड़ गई, किसने पकड़ी? एवें नहीं बुल्ले ने कह दिता मैं नहीं कहना, उन्हें ही कहना है जिदे नाल तालमेल बैठ जाए। तो जिदे नाल तालमेल बैठ गया थोड़े बोलां करके, तो ये बोल उन्हां तो उच्चे ही नहीं ने, तो मनुख उच्चा किस तरह होवेगा? क्योंकि बंदे दे नाल तालमेल पिया बैठता है। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। तो मड़ी बनाई हुई सी उत्थे, जद मैं मगहर गया ना देखण वास्ते, ते ब्राह्मण बैठा सी, ते मैनू कहने लगा सरदार जी आप कबीर जी के दर्शन करने आए हैं, दक्षिणा यहां रखिए। मैं कहा आप यहां भी आ गए? वो तो आपसे डरता हुआ बेचारा यहां आया था, आपने पीछा किया यहां तक। इते मैं थानू छड़ के इथे आया सी, तुसी इसनू नहीं छड़िया, फिर इथे आ गए, इहदी मड़ी ते बैठ गए हो, तुसी इसदे बोल नहीं पढ़े। औखा जरूर होया ब्राह्मण, पर मेरे मुंह बोल निकल गए। मैं कहे ते थाथों बेचारा तंग आके इथे आया सी, पीछा छुड़ाया इसने, पर तुसी इसदा पीछा नहीं छड़िया, तुसी इथे भी आ गए। इथे भी इसकी पूजा का नारा लांदे पे हो, उदों ते तुसी टिकण नहीं दिता, बनारस ते रहने ही नहीं दिता, विचारे नूं मजबूरी बनारस छड्डनी पई। उदों ते तुसी ये आखिया सी, सगल जन्म सिर शिवपुरी बिताया, मरती बार मगहर उठदाया, काशी मगहर संबिचारी, होछी भगत कैसे उतरस पारी। ये होछा भगत है, अज्ञानी है, कख नहीं समझ,
ਮਗਹਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੋਛਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਛਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਹੋਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਹਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਵਾਰ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਨੇ ਤੱਕ ਤੋਂ इलाहाबाद है, पटना है, कानपुर है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, दिल्ली है। क्यों? एक जो है वहम है, कल्पना है कि जिस दी मौत इत्थे होवेगी ते इत्थे जलाया जाएगा, सीधा शिवां दी पुरी च जाएगा। तो लोकी या मरण लई इत्थे आउंदे ने या अपनी देही जलाण लई। तो लाइन लगी रहिंदी है मुर्दियां दी। मैनू 2-3 दिन देखने का पूरा मौका मिले, क्योंकि गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब जी का इतिहासिक आस्थान बिल्कुल नेड़े है। दास उत्थे कथा करता सी ते मैं जाके उत्थे बैठ के देखदा सी। अमीरां दियां लाशां, वड्डे वड्डे धनाढ़ बंदियां दियां लाशां, जिन्हां नाल 500-500 हज़ार बंदा भी नाल आया है, इत्थे जलाण वास्ते लिआंदे पए ने। कबीर ने ऐलानिया किया, कहत कबीर सुनोरी लोई, भरम ना भूलो कोई, क्या काशी क्या ऊकर मगहर राम हृदय जो होई। हृदय च राम होना चाहिए है, तो की काशी ते की मगर, कुछ भी नहीं मैंने रखते। असी चलदे फिरदे तीरथ हां, साडे नाल काशी चलदी, असी काशी करके नहीं हां, साडे करके काशी है। इसनूं जिगर मुरादाबादी ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान किया। वो कहता है, हमको बनाए जमाना, ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। कबीर कहते नहीं, काशी साडे नाल चलदी है, ये तीरथ साडे नाल चलदे ने। कहत कबीर सुनोरी लोई, भरम ना भूलो कोई, क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जो होई। जद भी किसी ने ऐसी गल आखी है जो बंदियां नाल तालमेल नहीं बैठिया, या तो उन्होंने शहीद कर दिता गया या उन्होंने खूब बेइज्जती हुई है। अगर कोई संत पूजिया जा रहा है, बड़ा सन्मानित हो रहा है, तो समझ लेना उही गल आख रहा जिहड़ी तालमेल बैठता है, उच्ची नहीं आखी है। जैसे उच्ची ना आखण का कारण 2 तरह का हो सकता है, या तो इसनूं उच्ची गल का पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता, संत है ही नहीं। क्योंकि मैं हुणे ही अर्ज की है, 90% ते संत है नहीं, ते 10% जिहड़े संत ने इन्हां दे कुछ सोच लेंदे ने, वो नहीं आखना जिहदे नाल जगत का तालमेल नहीं बैठता, वो नहीं कहना। धन गुरु नानक देव जी ने कह दिता, और सारी जिंदगी संघर्ष दे च लंघी। किधरे बाबर दी जेल दे च ने, और किधरे रोहेलखंड दे च, जिथे बरदा फरोशी सी, मनुखा नूं बेचिया जांदा सी, पकड़ के जंजीरां च वेचण वास्ते खड़ा कीता। किधरे 5वां स्वरूप लाहौर दी हवेली च बंद है, तरह तरह दे तसईये है। 6वां स्वरूप ग्वालियर दे किले दे च बंद है, बड़ा भारी संघर्ष। 9वां स्वरूप दिल्ली दे पिंजरे दे च बंद है। 10वें नूं सारी जिंदगी संघर्ष दे च बतीत करनी पई। अला यार खान नूं भी कहना पिया, आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी, तुसी ते एक दिन भी आराम नाल अपना पहलू नहीं बदल सके। सारी जिंदगी संघर्ष दे च लंघी, अदावतां ही अदावतां, सोडियां दी अदावत, मसंदां दी अदावत, वकत दी हुकूमत दी अदावत, और वकत दे ब्राह्मणी समाज दी अदावत। आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। अगर दुनिया इंसाफ करे, जे इंसाफ करने की जांच किसी नूं आउंदी है। अला यार खान ने भी कबूल कर लिया, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह नाल इंसाफ नहीं किया गया, नहीं होया, मिलिया ही नहीं, इंसाफ मिलिया ही नहीं। अवल ते जगत दे बड़े बड़े श्रेष्ठ अवतारी पुरुषां नूं इंसाफ नहीं मिलिया। अज अरब भावें पूजदा होवे मुहम्मद साहब नूं, उदों ते बदर दी लड़ाई दे आप दे दंद भी टुट गए सन, पत्थर नाल टुटे, पत्थरां नाल तोड़े दोखियां ने। जवान शरीर होवे ते जवान दे दंद मजबूत होंदे ने ते पत्थर नाल टुटन, उदों ते बदर दी लड़ाई च यही कुछ होया। आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, तो यह अला यार खां कहंदा अगर दुनिया दे सियाणे मनुख इंसाफ करन, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। एक आवाज होके कह देगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की मुशाबित किसी होर नाल नहीं की जा सकती। ऐसा पुरख जो हर पहलू च मुकम्मल है, ये योगी भी है, ये राजनैतिक भी है, ये साहित्यकार भी है, कलम दा धनी भी है, ये तलवार दा धनी भी है, ये विचार दा धनी भी है, और ये चोटी दा भगत भी है। इतनी खूबियां ले बैठा है। अक्सर तलवार दे धनी कलम दे धनी नहीं होई, उन्हां दी कलम तो कुछ भी नहीं निकलिया। ये रूहे जमीन ते पहली दफा होया कि जो तलवार दा धनी है वो विचार दा भी धनी है, कलम दा भी धनी है, जिस दी कलम तो रब्बी गीत निकले, रब्बी संगीत निकले। ऐसा संगीत अज भी सियाणे तो सियाणे कहंदे ने, ऐसा संगीत अज तक पैदा नहीं हुआ, अज ऐसा गीत अज तक पैदा नहीं होया। किसी वक्त थोड़े सामने कुछ झांकियां मैं रखांगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे संगीत, भुजंग प्रयात छंद, संगीत भी नाल चलता है, गीत भी नाल चलता है। इको ही गीत दे संगीत और गीत और फिर इतिहास, ये खूबी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जगत दे सामने रखी। तो अला यार खां कहंदा है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। ते हुण इत्थे कह दईए अला यार खानों नहीं, तू जो कह रहे हैं या हो सकता है डरदा मारा कह रहे हो या लोभदा मारा। कहते मनुख झुकदा है किसी दे अगों आम कारण, आम लोगों के कारण दो ही आउंदे ने, तीजा कारण नहीं आउंदा। या ते डरदा मारा झुकदा है या लोभदा मारा, वरना झुकण दा होर कोई कारण नहीं है। या ते डरदा है सलाम करदा है, या कुछ इस तो लेना है लोभ है सलाम करदा है। तू मुसलमान है अला यार खां ते कहना है किसी नाल मुशाबियत हो ही नहीं सकती गुरु गोबिंद सिंह दी, और जगत ने इंसाफ नहीं किया गुरु गोबिंद सिंह नाल। तू जो ये कह रहे हैं डरदा मारा या लोभदा मारा, तो पता है अगे एक ही कहता है, अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है। अगली इसकी जो है नज़म, अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, मेरे हाथ दे कलम मामूली नहीं है, बड़ी ताकतवर शायर दी कलम है। विचार उगल दिए, सच्चाई उगल दिए, इहदे चों सच दे नगमे निकलदे ने। एक कोई लेखा जोखा हिसाब किताब लिखण वाली किसी बाणीए दी कलम नहीं है, एक कलम शायर दी है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। कहंदा अख मेरी एक, मैं सागर दियां लहरां नूं वेखां, किनारे नूं देखां, गहराई नूं देखां, किस किस दा जिक्र करां।
जे उपर उपर गुरु गोबिंद सिंह जी ਨੂੰ देखियो तो लहरां ਦਾ बड़ा बहाव है, ठहराव नहीं है। गहराई च ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ शांति है। जे गहरे तल ਦੇ ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੇ जोगी बैठा है, बाहर देखदਿਆਂ तो एक बादशाह है। ये अला यार खां कहता है। भाई साहब भाई नंद लाल नूं भी कहना पिया, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ये बादशाह थानू बाहरों वेखदे आ बादशाह, पर थोड़े गहरे तल दे जद झात मारदे एक फकीर बैठा है, एक दरवेश बैठा है, एक संत बैठा है, एक रब नाल जुड़ी हुई आत्मा बैठी है। तो खैर मैं सुभाविक जो है ये सामने गल आ गई तो कह देती, जगत विच अक्सर सच्चाई पूर्ण तौर पर कुछ महापुरुषों ने बयान नहीं की थी, ते कुछ अवतारी पुरुषों ने बयान की थी, समझ दे च नहीं आई, तालमेल नहीं बैठे। किस दी समझ च आई? क्या बोधी समझ सके महात्मा बुद्ध दी गल नो? उन्हें तो कहा सी धुन नाल जुड़ो, ध्यान जोड़ो। सारे मूर्तियां नाल जुड़ के रह गए, उहदे बुत नाल जुड़ के रह गए। और मैं ते पढ़ के बड़ा हैरान होया, क्योंकि उन्हां दा नाम सी बुद्ध, वैसे नाम उन्हां दा सिद्धारथ सी। ते ज्ञान किसी नूं मिल जाए तो कहते हैं इसनूं बोधकता मिल गई है, बुद्धि मिल गई, बोध मिल गया, ज्ञान। तो जिस दिन इन्होंने ज्ञान मिलिया, बोध मिलिया, तो सिद्धारथ दा नाम पै गया बोध, इते बुद्ध हो गए, महात्मा बुद्ध। जद अफगानी लोग हिंदुस्तान दे चाहे ये धा दा उच्चारण नहीं कर सकते सन, ईरानी अफगानी खा धा ढा हा इस दा उच्चारण नहीं कर सकते, अज भी नहीं कर सकते। इन्हां लई अज भी कहना बड़ा औखा है। इन्हां ने बुद्ध नूं आखिया बुत, ता नाल उच्चारण कीता। ये टा दा भी उच्चारण नहीं कर सकते, टैक्सी नूं ताक्सी करके कहते हैं उत्थे। मैं तो देख के हैरान होया, 8-10 लफ्ज इन्हां च है नहीं, कोई नहीं। ता बोल सकते हैं, टा नहीं। जैसे गोरे इत्थे मैं देखे ने, वो भी जद हिंदी बोल दें ना, तुम को कहते, तुम को नहीं कह सकते, तो टा बोल सकते हैं, ता नहीं बोल सकते। अपनी अपनी जबाना। बुद्ध नहीं कह सकते सन, बुद्ध कहा तो सहजे सहजे बुद्ध दे अर्थ ही मूर्ति बन गए, वरना बुद्ध दे अर्थ सन बुद्ध, महात्मा बुद्ध। गल इतनी सी, सिलसिला जो है ए सी। खैर ए तिवें विचकार जो है गल आ गई, किथे बुद्धिस्ट लोगों ने समझी महात्मा बुद्ध की गल नो, किस हिंदू ने समझे कृष्ण नो, किस मुसलमान ने समझे उस महान पैगंबर नो, और किस सिख ने समझे गुरु नानक नो। गुरु नानक दा आदर्श, गुरु नानक दा सिद्धांत, सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकन, ये वख वख रंग रूप सब एक दे च बह रहे ने। मैं सब दे नाल हां, सब मेरे नाल ने। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। क्योंकि भरतरी ने, गोरख ने यह पूछया सी थोड़ा वरन ते भेख, तो साहिब कहने लगे सारा ब्रह्मंड मेरा वरन भेख है। मैं सब दे नाल, सब मेरे नाल। मैं किसे तो न्यारा नहीं और मैथों कुछ भी न्यारा नहीं। आई पंथी सगल जमाती मन जीते, सारियां जमातां मेरे नाल ने, मैं सारियां जमातां दे नाल हां। समुच्चा ब्रह्मंड मेरे नाल है, मैं सारे ब्रह्मंड दे नाल हां, बह रहे हां, एक हां। नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। तो किसने इस गुरु नानक दे सिद्धांत नूं समझे, किसने जाने? बोल सिर दे उपरों लंघ जाते हैं। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं वो जो एक है ओंकार है, वो सारा बहाव चल रहा है, और वो जो ओंकार है सत है, मिथ नहीं है, कल्पना नहीं है, मिथ्या नहीं है, सत्य है। और जो सत्य है वो नाम है।
हुण नाम दी 1-2 मिनट मैं विचार करां। सतगुरां दी बाणी ते इस ढंग नाल नाम जिहड़े असीं जाणदे हां इहनूं नाम नहीं मनदे। कहंदे ना प्रभु दा नाम, तो इहदा मतलब एक ते प्रभु है, एक उसका नाम होवेगा। बई ईश्वर दा नाम जपो, इहदा मतलब एक ईश्वर है तो फिर उसका एक कोई नाम है। खुदा दा नाम लो तो इहदा मतलब एक खुदा है तो फिर उसका कोई नाम भी है। इंज कहंदे ने सारे, कहंदे ने भगवान दा नाम जपो, बई हद हो गई, एक भगवान है तो फिर उसका कोई नाम है। गुरु दा नाम जपो तो एक गुरु है तो फिर उसका कोई अगों नाम है। इसनूं इस तरह लो तुसीं, इसका मतलब नाम अलग रह जाता है, अलग रह जाता है। एक दफा मैं फिर दोहरा दियां, बई खुदा दा नाम जपो तो इसका मतलब एक खुदा है तो फिर उस खुदा दा कोई नाम होवेगा। परमात्मा दा नाम जपो तो एक परमात्मा है, उस परमात्मा दा फिर कोई नाम होवेगा। गुरु दा नाम जपो तो एक गुरु है तो फिर इस गुरु दा कोई नाम होवेगा। ईश्वर दा नाम जपो, प्रभु दा नाम जपो। दरअसल नाम किसी होर गल दी तरफ सूचना कर रहा है, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। हस्ती उंज कलगीधर पिता कहते ने इस तरह के नाम जो लोकी जानते ने तेरा नहीं है। अनाम है, अठाम है, तेरा कोई नाम नहीं, कतई कोई नाम नहीं। अनामे अठामे मनुख की दुनिया च ये सारे नाम ने, पशुओं की दुनिया च कोई नाम नहीं ने, पंछियों की दुनिया च कोई नाम नहीं। तो फिर मैं अर्ज करा रब की दुनिया च कोई नाम नहीं। सिर्फ सियाणे मनुख कोल है, सूझबूझ अकल मनुख कोल है। इसने नामां नूं जन्म दिता है महज इस वास्ते कि ज्ञान प्राप्त हो सके, समझ दे सकीए, समझ ले सकीए। जैसे तुसी मेरे ते प्रश्न करो भी इस वक्त तू कित्थों आया है, तो मैं कहदा कि मैं बहुत वड्डे शहर तो आया। बड़ा वड्डा शहर सी, बड़ी आबादी सी संघनी। तो तुसी आखो शहर का नाम की है, तो मैं आख नाम मैनू नहीं आउंदा। तो फिर तुसी की अंदाजा लगाओ मैं कित्थों आया। तो मैं थानू कह दिया इसे शहर दे मेरा एक दोस्त रहिंदा है, मेरा मित्र रहिंदा है, मैं उसनों मिलना चाहना। तो मैनू दसो उसका थां टिकाणा। तो थोड़ा पहला प्रश्न तो यह होगा भाई ये दस भाई उसका नाम की है। तो मैं आखिर नाम मैनू नहीं आउंदा। तो की दसोगे मैनू, किस तरह दसोगे? नाम सिर्फ जानकारी लैण वास्ते, जानकारी देण वास्ते। और हस्ती पहले आउंदी है, नाम बाद विच। बच्चे का जन्म पहले होया, नाम ते महीना साल 6 महीने बाद विच। नाम लैके कोई मनुखी बच्चा नहीं जमदा। सब अनाम आउंदे ने, परमात्मा तो सब अनाम आउंदे ने, नाम बाद विच दिता जाता है। लेकिन एक नाम ऐसा है जिस दे आसरे ते सब कुछ खड़ा है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। सारे एक खंड ते ब्रह्मंड नाम दे आसरे ते खड़े ने। सब कुछ उस नाम दे आसरे ते खड़े ने। तो फिर वो नाम की है? एक प्रश्न खड़ा होवेगा। तो नामां नूं इस तरीके नाल व्याख्या दे च लिआंदा गया, किरतम नाम, अकिरतम नाम, जाती नाम, सफाती नाम। मैं चाहता तो इसी इसे दी व्याख्या करा, पर मैं होर पासे चला गया तो समा हो गया, तो थानू लेट भी नहीं करना चाहता मैं। एक किरतम नाम, अकिरतम नाम, जाती नाम, सफाती नाम, अगर गुरु नानक ने मेरी अकल इस तरह ही बनाई रखी तो यही सोचनी बनी रही, तो कल खुलासा करांगे। वो जो एक है वो ओंकार है, वो जो एक है वो सत है, वो जो एक है वो नाम वाला है, नामने वाला है, उसका नाम है। तो इस नाम की व्याख्या करनी तो मैं अज सी, पर हो नहीं सकी। मैं तो गुरु नूं कुछ होर मंजूर सी। समा अपनी चाल नाल जो है चलदा है। तो इत्थे ही समाप्ति। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भावें ये अचानक शाम का दीवान रखा गया, सवेरे का भरपूर हाजरी तो जांदियां जांदियां भी संगतां कई 4 बजे तक गए ने, तो फिर तुसी आ गए हो। ये थोड़ा शौक, थोड़ी शरधा,
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ, ਔਰ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।